feel as an individual, what are the ups and downs in our mind while we go through these risk-taking decisions. And as you have already said, that taking risk does not mean that you will succeed. That is also one of the caveat which I would be mentioning here. Just because everybody is taking risk and you are reading about famous personalities, how Steve Jobs left Apple and again he took risk and again he came back, and then he, in 3 hours, the movie shows that he becomes a Steve Jobs. It's not like that. Every risk does not translate into success, and every Exactly. not taking risk is also not translating into success. Please remember that success is something that you have to wait for, you have to invest your time, and there is no guarantee for it. It's just like a life. You cannot guarantee life, you cannot guarantee success, but that does not mean that you will stop living life, you will stop preparing for success. So it goes side by side, and as Ms. Hiba was also telling, that interdisciplinary approach is the best approach. I am a scientist, why can't I be a musician? If musician can be mathematician, you see any personalities from the ancient or medieval field, you will see that they are all polymaths, polyglots. They are no, you cannot confine them to astronomy or mathematics or philosophy. Or Pythagoras was a philosopher. In fact, we know Pythagoras by his Pythagoras theorem as a mathematician, but he is the father of philosophy. There is a dispute. There's a huge dispute in philosophy, and Miss Hiba is from Stephens, that they have a very good philosophy department in St. Stephens. She may ask one of her friend. There's a two schools of thought. One believes that Thales of Miletus is the father of philosophy. Another school believes that Pythagoras is the father of philosophy. So can you imagine a person whom you only know by a square plus b, base square plus perpendicular square is equal to hypotenuse square, is not a mathematician. He is the father of philosophy. Some even regard him as a demigod. He had his own school when he used to preach spirituality. Cult. The allegation that he was preparing a whole army of cultists who will take over the elitist form of government. There are so many shades to a personality. So what I'm trying to tell you is that you can have a different shades of personality. One personality you can add to your success where you are highly inclined. Like Miss Hiba was telling, at 80 years old, somebody is becoming entrepreneur. I read yesterday that some lady, she got a PhD at 90-year old. There are so many. Now it's almost a kind of a normal routine that we read that in 68th year or 65th year, somebody is joining the college. But do not join the college just because Shah Rukh Khan joined in Hum Hai Na, whatever that movie was. It's a very serious decision when you change from one vocation to another. So having said that, now we'll open up these questions, and I have few questions in my mind. First, I will start with my question in my mind, and then I will proceed to the audience question. Ms. Hiba, you were talking about this, that risk has to be taken with a lot of analysis. Being an IIM graduate, obviously you will be planning and analyzing things. You have worked on Excel sheet also. Though actually those sheets are the worst sheets I have come across in my life. I hardly understand Excel. In fact, if Excel is there, then I am not there. So how difficult is to analyze sans the Excel sheet as a normal individual while taking a risk, whether I should go for that risk or whether I should not go for that. Can you do a small, beautiful SWOT analysis as an individual? What should I see and what should I not see while taking the SWOT analysis? Ms. Hiba. देखिए, किसी भी सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए I personally never used Excel sheets to analyze the decisions I'm going to take in life. Those were seriously restricted to my job as a business analyst with Citibank, and that's for numbers. आपने बहुत सही कहा कि एक SWOT analysis में करना चाहिए for whenever we want to take a decision. हमारे खुद के strengths क्या हैं, हमारी खुद की weaknesses क्या हैं, threats क्या हैं. So I think for any decision that you have to make, even अगर आप कहें कि मुझे 2 अलग-अलग colleges से offer आया है, 2 अलग-अलग courses के लिए, जिसके लिए मैंने apply किया था, मैं कौन सा course लूं और कौन सा छोड़ूं. तो आपको खुद को decide करना है कि आपका inclination किस तरफ है. आप खुद अपने आप को फ्रॉम अ लाइफस्टाइल पर्सपेक्टिव 10 साल 20 साल बाद कहाँ देखते हैं. एंड आई थिंक दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट आई वांट टू स्ट्रेस अपॉन अगेन कि अपने आप को सिर्फ एक जॉब प्रोफाइल के हिसाब से मत देखिए, एक सैलरी के पैमाने में रख के मत आप अपने आप को देखिए.
आप अपने आप को इस हिसाब से वैल्यूएट करिए कि आप किस तरह का लाइफस्टाइल चाहते हैं। कोई इंसान चाहता होगा कि मैं लोगों से इंटरेक्ट करना मुझे पसंद है, मैं किस तरह का लाइफस्टाइल चाहता हूँ जहां मैं लोगों से मिलूं जुलूं, इंटरेक्ट करूं, सोशल रहूं। So uska decision about a career choice will be different from somebody who says मैं ज्यादा interact करना नहीं पसंद करता, मैं बहुत खुश हूँ अगर मेरे सामने एक कंप्यूटर है और मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं है, बात करना पसंद नहीं है, मगर मुझे जो काम मेरे पास आएगा मैं उसे अच्छे से कर दूंगा अकेले। मैं टीम वर्कर नहीं हूँ, मगर मैं इंडिविजुअल वर्कर होना मेरी स्ट्रेंथ है। तो इस तरह के लाइफस्टाइल डिसीजंस आपको लेने होंगे। आपको कहना होगा कि मैं अपनी जिंदगी को किस तरह से गुजारूंगा, मेरा लाइफस्टाइल क्या होगा, उस हिसाब से मुझे डिसीजन लेना है। हैविंग सेड दैट, आप एक सिंपल प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट बना लीजिए एक पेपर के ऊपर। जब आपको लगता है कि आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स हैं किसी चीज के बारे में, बहुत सिंपली एक प्रो एंड कॉन का एक पेपर पे 2 साइड बनाइए, और आपके दिमाग में जो जो पॉइंट्स आ रहे हैं कि जिस चीज के बारे में भी आपको डिसीजन लेना है, वो प्रोज और कॉन्स लिखिए। आई हैव फेल्ट ओवर टाइम कि जब आप अपने थॉट्स को लिखते हैं तो आपको जिस तरह की एक क्लैरिटी मिलती है ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, दैट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। So that's like the simplest way of making a decision that I would leave with the viewers. वेरी वेल सेड मिस हिबा। इनफैक्ट एक सिंपल पेपर पे लिखना उतना ही मुश्किल है जितना कि आप डिसीजन लेते। बोलना और सोचना बहुत ही आसान है, हजारों तरह के ख्यालात हमारे मतलब कि जहन में आते रहते, बट उसको कलम बंद करना इतनी आसान चीज नहीं है। अगर आप 10 पॉइंट अपने पेपर पे लिख सकते हैं तो जानिए कि वो सही ही होगा, क्योंकि आपने एक ख्यालात को इनफैक्ट मतलब पिक्टोरियल फॉर्म को रिटन फॉर्म में करना भी आसान नहीं है। तो उस चीज को ज्यादा तरजीह दीजिए जिसको आपने प्रॉन्स में लिखा है, क्रॉस में लिखा है, जिसको कॉन्स में लिखा है, स्वॉट एनालिसिस किया है, उसको अगर गौर फिक्र का आप करेंगे, बार बार सोचेंगे, तो जरूर आपको उससे कुछ ना कुछ फायदा हासिल होगा। इनफैक्ट I'm really happy that you have talked about writing on paper. In fact, I was going to add this aspect. A lot of people say that in movies or in anywhere we see that they put up a sticky note, or we have heard about writers that they wrote the first poem on a piece of a napkin or a piece of a parchment or something like that and became very famous. Those are things to motivate us that whenever the idea comes, to always note it down. That sets you apart from the different people. Ultimately, your mind gets disturbed and you forget that idea. So very well received. In fact, another question has come. I will ask you, what are the risks involved in new product development? Madam, one audience is asking. You have been a management graduate. You must have worked in management field or in a project management, or say for instance, in a management class, you must have heard. When a new thing comes out in the market, product development, what are the risks involved? Maybe she's asking from the perspective of a new career. What are the risks involved? Like a product, a risk is there whether it will fail in the market or it will catch up. Just if I want to do something new, what are the risks involved and what are the chances of me getting success? Something like that, that audience is willing to. Okay, so the way I've understood this question is that what the person wants to understand is कि अगर एक product, एक नए product को हम market में launch कर रहे हैं, तो what are the risks involved with that? If, I understand. I would say every risk under the sun, from the product design to the legality of the product to the competition that is existing, to the actual to whether there is a need for the product in the market or not. So every imaginable risk is involved, but it is for you before. But most of these risks are dealt with before the product is launched. So we start with need कि इस product की जरूरत है कि नहीं है. आज के डेट में pandemic time में when everything is moving online, the need for different platforms for hosting online interactions was felt more than it was ever before. तो इसी का अगर हम example लें, so if Microsoft was launching Microsoft Teams, or Zoom was being launched, or there are a number of platforms which are being launched,
तो आपने एक नीड लेवल पे उसे टिक ऑफ कर लिया कि हाँ एक सफिशिएंट नीड है मार्केट में कि अगर मैं ये प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ तो एक बहुत लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस है जो इसको रिसीव करेगी, जो इसको खरीदना चाहेगी इस प्रोडक्ट को, या यूज करना चाहेगी इस प्रोडक्ट को. Then the next comes to how the product is actually satisfying that need. कि ठीक है मुझे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जरूरत है, मैंने ये परचेज कर लिया, मगर क्या ये प्रोडक्ट मेरी सारी नीड्स फुलफिल कर रहा है? Am I able to get clear audio and clear video on it? Am I able to record chats on it? Am I able to present using this platform? So वो प्रोडक्ट किस तरह से नीड फुलफिल कर रहा है? The other risk is how it is priced with respect to the other competitors in the market. You cannot be absolutely priced absolutely out of the market जब आप वही basic needs fulfill कर रहे हैं जो और products fulfill कर रहे हैं. क्या आपके पास ऐसा कुछ यूनिक है जो पेटेंट हो सकता है, जो और प्रोडक्ट्स एक्सेस नहीं कर पाएंगे, और इस वजह से आप उस प्रोडक्ट को ज्यादा प्राइस कर सकते हैं, वो प्राइस लोग पे करेंगे फॉर दैट यूनिक product. Taking a step back, you also need to see what are the entries, what are the barriers to entry for that particular market. एक कोई product होगा जिसमें आप बहुत invest कर रहे हैं, आपको लग रहा है ये absolutely brilliant product है, सब अच्छे से receive करेंगे, मगर barrier to entry is basically कि उसी के साथ और competitors, competing products खड़े करने के लिए कितने hurdles हैं जिसे पास करना पड़ेगा. अगर ऐसे कोई हर्डल्स नहीं है, अगर आज के डेट में हर कोई एक ऐप बना के और ऑनलाइन डाल सकता है फॉर होस्टिंग मीटिंग्स ऑनलाइन, देन मे बी यू नीड टू रीथिंक योर स्ट्रैटेजी एंड से यार मैं इतना इसमें इन्वेस्ट कर दूं दैट इट गेट्स प्राइस्ड आउट ऑफ द मार्केट, एंड देन इमीडिएटली व्हेन पीपल सी कि ये प्रोडक्ट तो अच्छा है, 10 और कंपेटिटर्स खड़े हो जाएंगे. सो डू आई नीड टू डू दैट और नॉट, और डू आई नीड टू मेक अ बेसिक वर्जन एंड मेक इट मोर एक्सेसिबल टू पीपल? You also have to see the risk involved is with respect to legal aspects, which I think that's another lane down which we can go. So that's a risk. Then the risk of the product just not getting picked up in the market. Maybe you do everything right and the product does not get received well for whatever reason. Maybe आपने perceive किया need है, need actually नहीं है. मे बी जिस टारगेट ऑडियंस को आपने टारगेट किया सोच के कि ये मेरा टारगेट ऑडियंस है, उनका प्राइस पॉइंट आपके प्राइस पॉइंट से नहीं मैच करता है. सो यू नो देयर कुड बी अ नंबर ऑफ रीजंस व्हाई द प्रोडक्ट फेल्स, सो दैट्स आल्सो अ रिस्क दैट कम्स इन. बहुत ही खूबसूरती से आपने एक्सप्लेन किया. इनफैक्ट मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा कि आपने जो कहा वो और तशरीह कर देता हूँ मैं, कि ये जो आपने कहा कि नीड फुलफिलमेंट बहुत ज़रूरी. यस एब्सोल्युटली, जितने भी अभी ब्रिलियंट प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आ रहे हैं वो एक्चुअली किसी ना किसी नीड को फुलफिल कर रहे हैं. वो एंटरप्रेन्योर जो किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करता है, वो छोटी प्रॉब्लम हो या बड़ी प्रॉब्लम हो, वही सक्सेसफुल हो रहा है. सिर्फ ग्लैमर के लिए प्रोडक्ट लॉन्च करना या विदाउट नीड किसी चीज को लॉन्च करना कभी भी सक्सेस नहीं गारंटीड है. बट अगर नीड को फुलफिल करता है तो 100% वो सक्सेस होगा. आप देखिए बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, जैसे रेड बस को कैसे मतलब कि हम अपने यूज में ला सकते हैं, किसी को भी आइडिया नहीं था, बट रेड बस लॉन्च करने के बाद देखिए कितनी फेमस होगी. बहुत सारे ऑनलाइन टिकटिंग बुकिंग 10 इयर्स पहले जिसने शुरू किया, आज वो एक मामूली सी चीज होगी, आज सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि आपने जैसे बताया बहुत कंपिटिटर्स आ गए, आइडियाज आउटडेटेड हो गए. तो एक नीड फुलफिलमेंट, दूसरी कॉस्ट इफेक्टिवनेस. इनफैक्ट मैं बता दूं कि एप्पल जो है, जितनी कि लोग जानते हैं इसको, बट इनका बहुत सारे प्रोडक्ट्स फेल रहा है. फर्स्ट कंप्यूटर्स फेल रहा है, ये जो गाना सुनने के जो आईपॉड बनाए थे वो फेल रहा है, बिकॉज दे वर प्राइस्ड आउटसाइड द रेंज ऑफ द मिडिल क्लास. अपर मिडिल क्लास के रेंज में भी नहीं आ सकता था वो. तो उन्होंने चीज तो बहुत अच्छी बनाई, बहुत पहले बना दिया, बट पैसे भी बहुत ज्यादा लगा दिए कॉस्ट, तो वो भी सक्सेस नहीं हुई. तो प्रोडक्ट अगर खूबसूरत हो, बहुत अच्छा हो, नीड भी फुलफिल कर रहा हो, बट अगर वो प्राइस के दायरे से बाहर है, तो आपने बहुत ही खूबसूरती से कहा कि वो भी सक्सेस नहीं रहेगा. इनफैक्ट इसके साथ मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी चीज को समझ नहीं पाते, रिस्क के बारे में बता दूं कि रिस्क लेना बहुत जरूरी नहीं. तो आप जो ख्यालात में है कि ये चीज कोई नहीं कर रहा पर होने वाला है, अगर आप रिस्क नहीं लेते हैं तो आप जमाने से पीछे चले जाते हैं. इससे मशहूर वाकया और कोई नहीं होगा जो कोडक के साथ हुआ.
पता नहीं कितने लोग कोडक पहले, कम से कम हम लोग के जमाने तक तो कोई भी तकरीबात या शादी ब्याह या कोई फंक्शन बिना रील के नहीं होता था। कोडक, किसी ने देखा कि नहीं देखा, आज के लोग कोडक रील नहीं हो तो फिर लोग तमाशा कर देते, भाई होगा क्या, कौन फोटो खींचेगा। तो कोडक वाज द अल्टीमेट इन फोटोग्राफी। नाउ आज तक कोई भी कोडक को नहीं जानता। क्यों? लेट 70s में कोडक के एक इंजीनियर ने डिजिटल कैमरा डिस्कवर किया, बोला कि सर यही फ्यूचर होने वाला है। उन्होंने कहा कि भाई बिना रील के कैसे कैमरा हो सकता, कोई पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये बोर्ड ऑफ मीटिंग तक गई, वहां के सीईओ ने कहा कि यार इसको छिपा के रख दो, इस इंजीनियर पागल हो गया, इसको हटा दो, ये अगर ऐसा काम करेगा तो हमारी कंपनी ही बैठ जाएगी। उस इंजीनियर को निकाल दिया गया और वो कैमरा जो डिजिटल थी उसको बंद करके स्टोर बॉक्स में रख दिया, सबको कहा कि खामोश रहो, दुनिया को मत बताओ। यही बात आज देख लीजिए कि कोडक का नामो निशा मिट गया, क्योंकि उन्होंने रिस्क नहीं लिया। वो उस पोजीशन पे थे जो रिस्क ले सकते थे। सेम चीज ब्लैकबेरी के साथ हुआ, जब पूरा जमाना टच की तरफ जा रहा था और आईफोन लॉन्च हो रही थी 3, स्टीव जॉब्स लॉन्च कर रहे थे, सबको पता था कि ये टच ही है, पर ब्लैकबेरी रिफ्यूज टू सी द लाइंस रिटन बोल्डली ऑन द वॉल। एंड वेयर इज ब्लैकबेरी नाउ? कहीं भी नहीं। तो ये रिस्क भी हमें नजर भी आता है, तब भी हम नहीं रिस्क लेते, वो बड़े अफसोस का मुकाम है। तो हम चाहेंगे रिस्क में ये भी चीज है, जो आपको पता है कि ये होना है फिर भी आप नहीं कर रहे, तो अफसोस का मुकाम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे साथ आया ये है कि आप ये बताइए कि यूपीएससी में जो लड़के बैठते हैं या तैयारी करते हैं, वो 2 साल अपने दिमाग में लेके चलते कि 2 साल या 2.5 साल लगेगा ही, तो ये क्या कितना बड़ा रिस्क है? अगर सबको मालूम है कि 3%, 4% से ज्यादा लोग सिलेक्शन नहीं होना है, पहले से भी आपको डेटा मालूम है कि 300 में से 3 ही सिलेक्ट होंगे, फिर भी आप अपनी जिंदगी के 3 साल देने जा रहे हैं, ये कितना बड़ा रिस्क है? ये रिस्क है या बेवकूफी है? इसके लिए मैं वापस रेफर करूंगी जो मैंने बात पहले कही थी। ये डिसीजन आपका है या किसी और का है? यूपीएससी देने का डिसीजन आपका खुद का है या किसी और का है? क्योंकि अपने कैलिबर को और अपने इंटरेस्ट को आपसे बेहतर कोई और नहीं समझ सकता है। तो क्या यूपीएससी के लिए आप 2 साल प्रिपेयर इस वजह से कर रहे हैं कि आपको लगता है कि मुझे ये करना है, मेरे अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी है, मुझे ये लाइफस्टाइल सूट करता है और इस वजह से मैं 2 साल लगाना चाहता हूं और एग्जाम देना चाहता हूं, उसके बाद सिलेक्शन हो चाहे ना हो? क्या सिचुएशन ये है? या सिचुएशन ये है कि अम्मी अब्बू ने कहा, चचा ने कहा, दादा ने कहा कि भाई हमारे फैमिली में तो आईएएस है नहीं, ये बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, इसको आईएएस जरूर देना चाहिए, और उसके बाद आपको बिठा दिया गया यूपीएससी की तैयारी के लिए? सिचुएशन कौन सी है? उस पर डिपेंड करता है कि ये बेवकूफी है कि ये कैलकुलेटेड रिस्क है। अगर आप इसमें अपना 100% दे रहे हैं, आपका इंटरेस्ट है, आपको इस एसोसिएटेड लाइफस्टाइल में दिलचस्पी है, then this is a calculated risk you're taking, just like you take a risk with any other thing। और सिर्फ यूपीएससी की तैयारी क्यों, आप मेडिकल की तैयारी ले लीजिए, आप कैट देने के लिए, एमबीए के लिए आप तैयारी ले लीजिए। अगर आपको लगता है हाँ मुझे ये करना है, मैंने अपने लिए ये चॉइस की है, तो ये कैलकुलेटेड रिस्क है जो आप ले रहे हैं, विच इज द सेम अक्रॉस एनी प्रोफेशन वेर यू वुड टेक अ कम्पिटिटिव एग्जाम। और अगर ये सिर्फ इस वजह से है कि आप कहते हैं यार इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, मगर ये घर वालों ने कह दिया है कि अब तो ये एग्जाम करना है, हमारे घर का नाम रोशन करेगा ये बच्चा, तो अब तो बैठ के ठीक है जी पढ़ रहे हैं। एंड उस पॉइंट पे अगर इस तरह अगर आपको ये कहा गया है, आपके लिए ये डिसीजन औरों ने लिया है, सो आई एम प्रिटी श्योर आपका इंटरेस्ट इसमें, आपका दिल इसमें नहीं लग रहा होगा। और जब आपका दिल नहीं लगेगा, सो that's actually the difference between that 3-4% who get selected and who don't get selected. If your heart is not into it, आप पेपर भी क्लियर कर लेंगे, आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे, आप मेंस क्लियर कर लेंगे, इंटरव्यू में you will not be able to justify your own self to the panel. So that will only come when you have that commitment and you have that determination कि नहीं मुझे ये करना है क्योंकि मैं करना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ आपसे। ये हक बात है कि इंसान की जो सोच होती है उसकी अपनी सोच होनी चाहिए, खास करके डिसीजन में। किसी ने आप पे जस्ट मुसल्लत कर दिया हो और वो कह रहा हो किसी वजह से कि आप उनकी ख्वाहिशात को खुद आपके जरिए पूरा करना चाहते हैं, तो वो भी गलत नहीं है, बट आपको देखना है कि उनकी ख्वाहिशात को आप इज्जत बख्श सकते हैं कि नहीं, आपके अंदर वो कैपेसिटी है, इंटरेस्ट है,
जो आप उनके ख्वाहिशात, माँ बाप के ख्वाहिशात या चचा के ख्वाहिशात को मतलब कि रोशन कर सकते हैं। ये डिसीजन खुद को लेना है, आप यूनिक है। ये नहीं कि हिबा मैडम ने वो डिसीजन लिया था और शाहनवाज साहब ने ये लिया था, वसीम और जावेद ने ये लिया था, तो मुझे भी लेना है। हर आदमी यूनिक है, अपने हिसाब से आपको देखना है। तो इसी को, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए मैं वसीम साहब से पूछूंगा। डॉक्टर वसीम साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे स्पीकर मैडम से? सही बात तो यह है सर कि बहुत सारे क्वेश्चन मन में आते गए और वो सबका जवाब मिलता गया। ज्यादातर तो पॉइंट कवर हो गया मेरी समझ से, और इसलिए इसलिए अभी कोई वाकई कोई क्वेश्चन इस लाइंस का नहीं रह गया मेरे ध्यान में। अच्छा, हाँ, लोग आते गए, कारवां बनता गया, तो वही मतलब कि लगता है मुकाम पे हम लोग पहुंच रहे हैं कि लोग आते जा रहे हैं, कारवां बनता चला जा रहा है। फिर भी कारवां को आगे जावेद साहब बढ़ाएंगे। जावेद साहब ज्वाइंट ये कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हैं, वो क्वेश्चन पूछेंगे, दिल्ली से हैं जावेद साहब। कनेक्शन लॉस्ट हो चुका है जावेद साहब का। जावेद, वुड यू लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन? हाँ बोल रहे, आवाज आ रहा है क्या? हाँ, आवाज आ रही है। जावेद साहब, आप क्वेश्चन पूछिए। हेलो, am I audible? Yes, you are audible. Please go ahead. Audible. Thank you, Shahnawaz, for having me in. And as Wasim has said, there are a couple of questions which were emerging when I read the biodata of Miss Hiba Khan. And like, she is from accountancy, she moved to economic honors, and then from real estate firm to MBA, and then to clothing line. All this, the appetite to take risk, and like we know that the ability to take risk also comes from our social and economic background. And I must thank you, because this is the question which I was intending to ask, and she has categorically in her own submission stated that yes, you have to, the privileges, you live with your privileges as well as with your misfortunes, but the strength comes in when you write down what she has said, plus and minus, what you can do and what you cannot do, you have to put in. And in that regard, people should know, find out their friends, mentors, like Shahnawaz, you are doing a very good job, or like people like Hiba Khan and other the speakers which are coming to your shows, they are doing. People, the youngsters should look for their real friends. For that, I compliment you, and thank you for having me in. जावेद, यही लगता है कि पूरे दारोमदार मुझ पे छोड़ दिया गया है मिस हिबा से क्वेश्चन पूछने के लिए। मेरे दिमाग में अभी 2-3 क्वेश्चन सवालात हैं। एक क्वेश्चन ज़हन में आया है, मैं उसको, जो पहले डिस्कशन हो चुका था उस पर मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी डिस्कशन हो रहा था कि कोई बादशाह है तो भी म्यूजिक सीख रहा है, या एक प्रोफेशन के साथ दूसरा प्रोफेशन में एंट्री करता है, डॉक्टर है म्यूजिक बजा रहा है या एक ही। तो इसी पर मेरा एक सवाल है कि एक रेगुलर जो जॉब होती है, रेगुलर जो प्रोफेशन है, उसके साथ साथ जो दूसरे फील्ड में एंट्री कर रहा है आदमी, उसमें सिर्फ शौक को क्राइटेरिया बनाना चाहिए या करियर को भी क्राइटेरिया बनाना चाहिए? इनफैक्ट मिस हिबा, ये पूछना मुझे जो समझ में पूछना चाह रहे हैं कि शौक को लेके आगे बढ़े और वो अल्टीमेटली करियर बन जाए, या पहले से दिमाग में रखे कि इसको करियर बनाना है तो शौक भी साथ साथ मतलब पैशन में चलता चला जा रहा है? तो मेरा एक बहुत सिंपल सा जवाब ये होगा कि आपका जो भी शौक है उसको आप इवैल्यूएट करिए कि इसका बिजनेस पोटेंशियल या इसका करियर पोटेंशियल क्या है। क्या इसमें आगे चल के एक ऐसा करियर बन सकता है जो आपकी लाइवलीहुड के लिए प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सिंगिंग का शौक है, आप अपने दिमाग में या ऑन अ पीस ऑफ पेपर आप चार्ट आउट करिए कि अच्छा, मैं गाने में अच्छा हूं, तो क्या मुझे आगे चल के इसका क्या स्कोप है। क्या मैंने आज तक एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली है? क्या मैं, अगर नहीं ली है तो क्या मैं एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले सकता हूं इसके लिए? इंटरेस्ट मेरा ऑलरेडी है, ठीक ठाक अच्छी आवाज है, तो अगर मैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेता हूं तो उसके बाद किस तरह के फाइनेंशियल कमिटमेंट्स होंगे इसको एक करियर के स्टेज तक पहुंचाने के लिए? एम आई इक्विप्ड टू मेक दोज फाइनेंशियल कमिटमेंट्स? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे
see, everybody is in a job, is in a career to be able to provide for themselves. And this is a very important question that we need to ask ourselves कि क्या हमारी risk appetite इतनी है, क्या हम वो financial commitment कर सकते हैं to take that risk or bear the consequences of that risk that we are taking. Having said that, कभी भी बुरा आइडिया नहीं है कि आप अपने जॉब के साथ अपने शौक को एज अ शौक ही परस्यू करिए. कुछ नहीं, अगर वो करियर नहीं भी बन पाया तो एटलीस्ट आपको अपने जॉब के अलावा जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है आप वो तो करेंगे, आपका स्ट्रेस लेवल तो कम होगा एट द एंड ऑफ द डे. आप उस काम को तो करेंगे जो आपको खुशी दे रही है. एंड देन अलोंग द सेम टाइम सोचते रहिए उसके बारे में कि इसमें मैं और क्या कर सकता हूँ. प्रोएक्टिवली सीखिए, प्रोफेशनली ट्रेन हुई, कोर्सेज करिए, whatever applies to your interest per se, because I'll tell you, a lot of people, for something as simple as illustration, drawing, कई लोग काफी अच्छे होते हैं illustration में. There's this designer by the name of Alicia Souza, based out of Goa. She started her illustrations and आज के डेट में उनकी एक बहुत ही बड़ी प्रोडक्ट लाइन है और वो कमर्शियली सेल करती हैं अपने प्रोडक्ट्स, डायरीज, डिजाइन, स्टिकर्स, बहुत सारे मर्चेंडाइज है. एंड शी इज मेड अ बिजनेस आउट ऑफ इट एंड दिस स्टार्टेड अलोंगसाइड अ जॉब. बहुत ही अच्छा इनफैक्ट आपने एग्जांपल दिया. साथ साथ मैं ये भी कहूँ कि मैं 10 दिनों से देख रहा हूँ, एक लड़का है केरला का, उसका नाम सुनील या सुनीत हो, जिसको लोग छोटा रफी कहते हैं. वो इतना फेमस हो गया, लिंक्डइन में मेडिकल के फाइनल ईयर स्टूडेंट है. आप छोटा रफी टाइप करके गूगल में देखिए. ये 10 या 15 दिन का इसी वाकया, अभी जो देख रहे टाइप कीजिए. उसको कल मुंबई से ऑफर मिला है सिंगिंग के लिए, लिंक्डइन पे शेयर किया है. वो बंदा रफी की, मोहम्मद रफी साहब की आवाज इतनी खूबसूरती से गाता है कि अगर आप फोटो ना देखे तो लगेगा कि मोहम्मद रफी साहब ही फिर से की गा रहे हैं. तो ये उसका पैशन है, मेडिकल का फाइनल ईयर में है और 1 महीने में वो इतना फेमस हो गया है कि now he has offers from Bollywood and across. He has become a celebrity known as छोटा रफी. तो होता है, आप उन्होंने पैशन को, करियर कभी नहीं सोचा होगा, जैसे आपने कहा पैशन को आगे बढ़ाया, साथ साथ मेडिकल करियर था. तो एक परफेक्ट एग्जांपल है डॉक्टर कैसे म्यूजिशियन हो सकता है. और रही बात दूसरे तरीके की जो आपने कहा कि मतलब कि इसको बिल्कुल आगे बढ़ाते रहना चाहिए, तो मैं बता दूं डॉक्टर वसीम साहब जो है यूनानी में मेडिसिन है, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है हैदराबाद में, और ये यूनानी को अपना पैशन बनाते, इसलिए शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि इसमें मैं कितना उड़ सकता हूँ, कितना आगे जा सकता हूँ. तो इस जज्बे के साथ उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है. तो इस चीज को आगे बढ़ाते हुए एक ऑडियंस से क्वेश्चन है कि आप इसी फील्ड से हैं, व्हाट इज द प्रोस्पेक्ट ऑफ रियल सेक्टर marketing when it is going to take up, number one, take off? When is the recruitment going to happen? We see a lot of job prospects. Real estate is the building block of a country's economy. What is your take on the real estate sector now and what is the future? Obviously in reference to our job prospect and career. इस रिगार्ड में, क्योंकि आज की डेट में मैं रियल एस्टेट फील्ड में ही काम कर रही हूँ, तो इस सवाल का मैं बहुत इन डेप्थ आंसर दे सकती हूँ, मगर इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम इसको थोड़ा समराइज करके रखेंगे. आज की डेट में, गिवन दैट द इकोनॉमी इज नॉट डूइंग वेल इन द आफ्टरमैथ ऑफ द पैंडेमिक, द रियल एस्टेट इज इन अ स्लम्प. जिस तरह से हमारा ओवरऑल इकोनॉमी एक स्लम्प में है, जीडीपी इज इन नेगेटिव ग्रोथ, हमारा रियल एस्टेट भी बहुत सीवियरली इम्पैक्ट हुआ है, both residential and commercial real estate. Residential real estate because people have faced job cuts, people have lost jobs, and they do not have the kind of money that they will invest in buying an asset. On the commercial side, offices hain, malls hain, retail shops hain, they are not doing well क्योंकि for offices most people are on a work from home roster. ऑफिसेस की जरूरत नहीं है, लार्ज स्केल सरेंडरिंग हो रही है, ऑफिसेस की बिल्डिंग्स खाली हो रही हैं, शॉप्स आर नॉट डूइंग वेल अगेन क्योंकि लोगों के पास डिस्पेंसेबल इनकम नहीं है. सो रियल एस्टेट इज इन अ स्लम्प एंड वी एक्सपेक्ट दैट द सेम विल कंटिन्यू टिल March 2022. So that is the kind of timeline that you have to have in mind. Having said that, अगर आपका रियल एस्टेट में इंटरेस्ट है और आप सोचते हैं कि रियल एस्टेट के अंदर आपको करियर बनाना है, सो इन द आइडियल वर्ल्ड जब मार्केट्स बूम करेंगे या मार्केट स्टेबल होंगे
दिस इज अ फैंटास्टिक करियर टू बी इन, स्पेशली अगर आपको इंटरेस्ट है लोगों से मिलने में, लाइजन करने में, नेगोशिएशंस में आपका इंटरेस्ट है, सो दिस इज अ ग्रेट फील्ड टू बी इन. सो आई वुड से अगर आपको इवेंचुअली इस फील्ड में आना है तो यू नीड टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ अगेन. अगर आप कहते हैं कि 2022 तक ये मार्केट रिवाइव करेगा, फिर मार्केट में वो क्वेरीज और वो सेल्स वापस आएंगी जो हमने 2 साल पहले देखी थी, तो इन दिस मीन टाइम आप अपने आप में इन्वेस्ट करिए, आप नेगोशिएशन के कोर्सेज पढ़िए, ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि रियल एस्टेट के अंदर विद रिस्पेक्ट टू जॉब कितनी प्रोफाइल्स हैं. क्या आप एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, क्या आप लीजिंग में इंटरेस्टेड हैं, क्या आप सेल्स में इंटरेस्टेड हैं, रेसिडेंशियल और कमर्शियल के बीच का डिफरेंस जानिए, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं इस फील्ड में उनके बारे में जानिए, सो दैट व्हेन यू डू प्रेजेंट योरसेल्फ फॉर अ जॉब इन दिस मार्केट, व्हेन द जॉब रिवाइव्स, you know more about the market than other people who are with you on the panel. Hiba, in fact, I would like to ask you more question on this because you are expert in this and you are on the ground. The world economy is also in the same, and real estate is almost like India everywhere, and it is supposed to grow. In fact, what you told the timeline 2020, I also agree. Before that also the market will pick up. There's no reason why the economy will not pick up, because human tendency is to come running after one is a little slow. It will pick up like the world economy. But I would like to ask you, what are the career options in real estate? Can you list out 1, 2, 3 and what one should do to get prepared for that career options? This is the way how our audiences should prepare themselves for career in real estate especially. What are the courses they should do, from where they should do, and what are the possibilities? So see, within real estate, हमारे what we call the IPCs, International Property Consultants हैं, which are the most professional outfits to work with अगर आप real estate में हैं. So to name a few, CBRE, Cushman & Wakefield, Knight Frank, Savills, Colliers, ये सारे बड़े firms हैं. These are international property consultants, very professional outfits जो recruit करते हैं लोगों को. And again, within real estate, अलग-अलग profiles होती हैं. One is purely residential, where we are talking about houses. Then there is commercial, where we talk about retail spaces, malls, shops, offices. आज की डेट में जो हम co-working spaces के बारे में सुन रहे हैं, these. So here again, we could be talking about sale of these assets, or we could be talking about leasing. जैसे rent पे offices चलाना, for example, अगर Microsoft का office चाहिए आज की डेट में, Microsoft 1.5 lakh 2 lakh square foot ढूंढ रहा है. So are you going to make that deal happen, or how are you going to make that deal happen? So वो leasing में वो component आता है. उसके अलावा warehouses के लिए लोग properties ढूंढते हैं, industrial plots ढूंढते हैं, manufacturing plants डालना चाहते हैं. That's another vertical. So within each of these verticals, you could either be doing sales or you could be doing leasing. Similar functions are replicated by local brokers. जो आपने देखे होंगे कॉलोनीज में अपने कोई ब्रोकर है जो आपको घर ले जाके दिखाता है, प्रॉपर्टी दिखाता है. So it doesn't necessarily have to be small scale. हम ऐसे ब्रोकर्स के इंटरेक्शन में जिन्होंने स्टार्टअप खुद किया, मगर they gradually grew to large office sizes, large team sizes, अलग-अलग cities में थे. So those are the kind of profiles that you could be having, or you could, instead of IPCs, you could be working with developers. तो आपने Unitech का नाम सुना होगा, आपने Asotech का नाम सुना होगा, आपने JP का नाम सुना होगा. तो ये builders हैं जो real estate field में ही काम करते हैं, और इनके offices में job availabilities होती हैं along the same lines जो मैंने अभी explain की. Residential होगा, commercial होगा, industrial होगा. So these are broadly the fields, and then within each, अगर मैं एक बहुत broad sense में बात करूं, so there is sales and there is leasing, and अगर आपकी marketing में interest है, so these companies also heavily invest in marketing, so you could be part of the marketing team, you could be part of the sales team. जितना बड़ा होता जाता है portfolio, उतने roles narrowly define हो जाते हैं, and you will always find something which is of your interest.
ये बहुत ही बढ़िया आपने समझाया। इनफैक्ट आपने एक बात मेंशन किया था, नेगोशिएशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर माइक्रोसॉफ्ट को 1 लाख स्क्वायर फुट की ज़रूरत है तो इसमें नेगोशिएशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स। तो क्या आप बताना चाहेंगे कुछ अच्छे कोर्सेज हैं जो नेगोशिएशंस पे लोग कर सकते हैं इस पैंडेमिक के दौरान ऑनलाइन करके, जिससे इनका प्रॉस्पेक्ट मार्केट में बढ़ जाता है? बिकॉज मैं हमेशा लिंक्डइन पे यही देखता हूँ कि बहुत सारी जोर जो है कम्युनिकेशन और the negotiation skills, how to close the deal. This is what the tagline always says about some courses. So do you recommend any course for the people who are interested in negotiation and communication? एब्सोल्युटली। Real आप estate. यूडेमी पे या कोर्सेरा पे अगर सिर्फ नेगोशिएशन कीवर्ड से सर्च करेंगे, आपको कई कोर्सेज मिल जाएंगे। एंड दिस इज वन थिंग वेयर आई फील our Indian MBA course actually lacks. We should be doing a course like paper exclusively on negotiations, which doesn't end up happening. So I reverted to Coursera एंड यूडेमी। इस पे कई आपको फ्री कोर्सेज भी आज की डेट में मिल जाएंगे। बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक दे मेड अ लॉट ऑफ द कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल्सो मोस्ट ऑफ दीज कोर्सेज अगर आप सिर्फ एक पढ़ने के पर्सपेक्टिव से सीखना चाहते हैं, सो यू विल गेट द फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको एक सर्टिफिकेशन भी चाहिए, सो यू नीड टू पे अ स्मॉल अमाउंट। But Udemy and Coursera, these are two places I will go to. उसके अलावा there are books that you can definitely read. So there's this book called Thinking Fast and Slow. So that's one that you could read. And there are a lot of other books जो decision making के ऊपर हैं, and I could probably share a list of the books and we can add that to the video recording once we put it on YouTube. So those are good reference points. आप चाहे बुक पढ़ना चाहें, चाहे आप कोर्स पढ़ना चाहें, you will find them. बिल्कुल सही। आज के ज़माने में मैं समझता हूँ कि कोर्सरा पे तो गूगल भी अपने कोर्सेज रखने जा रहे हैं। मतलब कि इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म हो गई है कि गूगल खुद अपना 4 कोर्स जो लॉन्च किया है पैंडेमिक को देखते हुए, जो मैंने कहा यूएक्स यूजर एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डाटा एनालिटिक्स, तो ये सब कोर्सेज कोर्सरा में बहुत सारे नेगोशिएशंस के ऊपर कोर्सेज कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर गिविंग दोज एडवाइजेस। मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या चीज़ है। गूगल ने जब 4 चीज़ को नौकरी से जोड़ा है तो जरूर कहीं ना कहीं बात जो है वो एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी हुई है। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कितना करियर प्रोस्पेक्ट है, कौन कर सकता है, कहां से कर सकता है और कितनी बड़ी चीज है ये। 6 महीना में गूगल करा रहा है, तो हम कितने दिन में कर सकते हैं, कहां कहां से कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए हिबा मैम। See, in particular, project management के कौन से courses हैं, this is something that I will probably have to do a bit of research for and get back. And like I said, probably जब हम इस course को upload करेंगे तो हम YouTube में ये सारे information दे सकते हैं। But as far as you asked, कौन कर सकता है? I would say कोई भी कर सकता है। Anybody who's interested in licensing, in management per se, who feels he has the caliber to maintain timelines, have visibility on a lot of different things at the same time. क्योंकि project management essentially एक skill है जहाँ पे आप कई सारी चीजों को in coordination and balance लेके चलते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप उस तरह की मल्टीटास्किंग कर सकते हैं आसानी से, then you can definitely do it. It doesn't mean कि अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं तो आप नहीं कर सकते, आर्ट्स आपने पढ़ा है तो आप नहीं कर सकते। It's a field which is open to anybody who has the natural inclination to do it. यस, मल्टीटास्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बिकॉज अल्टीमेटली अगर प्रोजेक्ट टाइम से खत्म नहीं होता तो कॉस्ट ओवररन्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं और बॉटम लाइंस पे भी अफेक्ट होता है। तो इसलिए दे नीड द बेस्ट ऑफ द पीपल टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। और वसीम साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे या जावेद इसमें? वसीम, वुड यू लाइक टू आस्क एनीथिंग? नहीं सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा पूरा सेशन सुन के, काफी नॉलेजेबल। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। Thank you so much. एक क्वेश्चन मेरे पास ऑडियंस से आया है जो आपके प्रोफाइल से रिलेटेड है, वो है एंटरप्रेन्योरशिप से। तो ये मोहतरमा पूछना चाहती हैं कि अगर हम किसी एंटरप्रेन्योरशिप में जाए, हमें मतलब कि है उसमें जज्बा और मतलब कि कैपिटल भी थोड़ी बहुत मान लीजिए उसके लिए है,
तो फिर जाने के बाद हमें लगता है कि मतलब कि ये चीज अब नहीं हो पाएगा, तो वो कैसा मुकाम है? फिर हम वापस आ जाए या फिर उसमें और कुछ उसको टाइम दे? आप तो शायद इसमें कर चुकी है, तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी? कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है मेरा, एक ओपन क्वेश्चन, एंटरप्रेन्योर जो बनना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या मतलब का एडवाइस है, क्योंकि इस मरहले से आप भी गुजर चुकी हैं। सबसे पहले जिस फील्ड को आप चूज करें कि मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट है, मैं इसमें एक एंटरप्रेन्योरियल जर्नी अंडरटेक करना चाहता हूँ, उसके बारे में जानें. Information and knowledge is foremost. That will be your biggest tool. The more you know about a market, the better informed your decisions will be, and that will reduce the chance of failure at the onset. तो उसके बारे में एक्सटेंसिवली पता करें. जो लोग उस फील्ड में हैं उनसे बात करें, उनको एक्सेस करें, ऑनलाइन पढ़ें. जितना इंफॉर्मेशन आप उसके बारे में जान सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, वो करिए. उसके बाद अगर आप कहते हैं कि मुझे स्टार्ट करने के बाद कुछ अड़चने आ रही हैं, हर्डल्स आ रहे हैं, मुझे इमीडिएट सक्सेस नहीं मिल रही है, तो इमीडिएट सक्सेस तो नहीं मिलती है. वो स्टार्ट विद दैट फ्रेम ऑफ माइंड एंड गिव योरसेल्फ टाइम. से कि मैं अपने आप को 1 साल दूंगा या 1.5 साल दूंगा, जिसमें मैं ये 1, 2, 3, 4 चीजें करूंगा, इतने लोगों से बात करूंगा. ये मेरा ब्रॉड बिजनेस प्लान है. और अगर उस 1.5 साल के एंड में मैंने अपना ये गोल नहीं मीट किया, एंड दैट गोल कुड बी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सेल्स, इट कुड बी इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, इट कुड इवन बी इन टर्म्स ऑफ द नेटवर्किंग दैट यू डू and the popularity that you have, or basically the brand awareness for your particular business. तो आप उस गोल को डिफाइन करिए और एक टाइमलाइन को डिफाइन करिए कि मुझे 1 साल या 1.5 साल में ये अचीव करना है. आप ड्यूरिंग दैट कोर्स ऑफ टाइम आप रेगुलर इंटरवल्स पे अपने आप को रिव्यू करिए, कि हर 3 महीने पे, हर 4 महीने पे माइक्रो गोल्स सेट करिए कि हाँ, इस टाइम तक मुझे ये कर लेना चाहिए था, इस टाइम तक मेरी वेबसाइट अप हो जानी चाहिए, इस टाइम तक मेरे सेल्स स्टार्ट हो जाने चाहिए. तो उन माइक्रो गोल्स को आप रिव्यू करते रहिए. और फिर भी अगर आपको लगता है एट द एंड ऑफ दैट 1 year दिस थिंग इज नॉट गोइंग एनीवेयर, देन मेक योर लिस्ट ऑफ प्रोज एंड कॉन्स एंड टेक अ डिसीजन. आप ये मत सोचिए कि मैंने 1 साल ही इसमें लगा दिया, अब कैसे छोड़ दूं, लोग क्या कहेंगे. इट डजंट मैटर, क्योंकि वो 1 साल चला गया. दैट इज अ संक कॉस्ट, जो हम इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट बोलते हैं, संक कॉस्ट है. आप आज की डेट में कोई भी डिसीजन ले लेंगे, वो पिछला टाइम वापस नहीं आने वाला है. व्हाट यू कैन सेव इज द टाइम गोइंग फॉरवर्ड. आपने टाइम सेट किया, आपने अपने माइक्रो गोल्स सेट किए, उन माइक्रो गोल्स को रिव्यू किया, और जो जो आपको करना था इन टर्म्स ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन, आपने वो सब किया. उसके बाद जब उस टाइम पीरियड के एंड में आपने रिव्यू किया, फिर भी आपको लगा कि यार नहीं हो रहा है, ये दिस इज नॉट मीटिंग द गोल आई डिफाइंड, देन फाइन, मूव ऑन. मे बी देयर इज समथिंग एल्स दैट यू बेटर एट. बिल्कुल सही. इनफैक्ट मैं इसमें भी ये आपसे बिल्कुल मतलब मुत्तफिक हूँ कि जो चीज़ आपने इन्वेस्ट किया है वक्त के तौर पे तो वापस नहीं आएगा, बट एक्सपीरियंस के तौर पे बिल्कुल वापस आता है, और उसको कहीं ना कहीं आप लगा सकते हैं. ऐसा नहीं कि वो जो वक्त आपका चला गया, वो उसके एक्सपीरियंस भी आपके हाथ से गया, वक्त तो गया ही गया. ऐसा नहीं होता है. जो आदमी स्कूल पढ़ता है क्लास 1 से 10 तक, इसका ये मतलब नहीं कि हर आदमी जो है वो जो है इंजीनियर और साइंटिस्ट और मतलब कि एस्ट्रोनॉट ही बनता है. ऐसा कुछ भी नहीं है. वो किसी भी चीज में रहता है, उसके जो एजुकेशन ओवरऑल उनको एक्सपीरियंस में हेल्प करता है. तो ये संक कॉस्ट और इसकी बातें बहुत अच्छी लगी. इनफैक्ट इससे मैं रिलेटेड एक क्वेश्चन बिल्कुल मुस्तैक है, मैं पूछता हूँ कि एमबीए करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो भी आईआईएम से, क्योंकि आपने ये अगर क्वेश्चन ना पूछूं तो ये ज्यादती होगी ऑडियंस के साथ में और सबके साथ में. तो आईएम का प्रिपरेशन के लिए क्या आप एडवाइस देंगे, क्योंकि आपका ये फर्स्ट नहीं रहा, स्टीफेंस के बाद आपने कुछ थोड़ा लेट डिसाइड किया कि मुझे जाना है, तो कब डिसाइड किया, क्यों डिसाइड किया और क्या करना चाहिए? देखिए, मैं जो बताऊंगी वो बहुत ही स्पेसिफिक है मेरे केस के लिए, एंड मेरे लिए ये वर्क किया. मगर मैं फिर से कहूंगी, जो भी सुन रहे हैं और जो एमबीए का डिसीजन लेना चाहते हैं, वो ये डिसीजन आपका होना चाहिए. आप खुद डिसाइड करें कि हाँ, मुझे एमबीए करना है, क्योंकि उसके बाद मैं एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक करियर बनाना चाहता हूँ.
या फिर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ. सो डिफाइन योर गोल बियॉन्ड एमबीए, डोंट स्टॉप एट एमबीए. उनसे एमबीए कर लेना है बस, अब उसके बाद क्या करना है देखेंगे. दैट शुड नॉट बी इट. आप पहले तो सोचिए कि एमबीए के बाद आपको करना क्या है. वंस यू डन दैट एंड यू नो कि आपको एमबीए करना है, सो पर्टिकुलरली फॉर मी, मैंने पहली बार जब कैट का अटेम्प्ट दिया था, विच वॉज व्हेन आई वाज इन थर्ड ईयर, तब मैंने कोचिंग ली थी. एंड देयर आर ऑल ऑफ दीज कोचिंग्स, टाइम, आईएमएस और काफी सारे नाम हैं जो एमबीए की कोचिंग देते हैं. आई अडॉप्टेड फॉर इट. पर्सनली आई फाउंड कि ये ट्रिक्स और टिप्स पे ज्यादा फोकस करते हैं टू मेक द स्टूडेंट फील कि वो कुछ नया सीख रहा है, मगर ये वो चीजें नहीं है जो आप रिटेन कर पाते हैं इन द लॉन्ग रन. So they're good from a point of view of keeping you on track with your preparation, but beyond that, nothing much. Second attempt जो मैंने दी when I actually cleared the CAT and I got calls from a number of places was when I did my own preparation. आप अपना शेड्यूल बनाइए और उसे बहुत ही रिलीजियसली फॉलो करिए. ये नहीं होना चाहिए कि मैंने अगर कहा है 2 घंटे में पढ़ूंगा तो कोई बात नहीं, आज छोड़ देता हूँ, कल 4 घंटे पढ़ लूंगा. वो नहीं होगा. दैट इज अ स्लिपरी स्लोप. फिर आप एग्जाम तक पहुंच जाएंगे और आप कहेंगे आज एक पूरा दिन पढ़ लेता हूँ, आज का हो सकता है काफी हो जाए करने के लिए. सो डोंट डू दैट. बी सिंसियर विथ व्हाट यू डू. एंड मैंने प्रेपरेशन किया था अलोंग साइड अ जॉब. सो आई वुड वेक अप इन द मॉर्निंग, मैं 2 घंटा सुबह पढ़ती थी, देन आई वुड गो फॉर माई जॉब, come back, study for another 2 hours. Online tests are very important क्योंकि अब CAT पूरा ऑनलाइन हो गया है. So आप ऑनलाइन टेस्ट लीजिए. It will give you a simulation of what you will see in the final attempt. तो आप ऑनलाइन एग्जाम्स लीजिए. कुछ बुक्स हैं. I personally studied from अरुण शर्मा. There's this book for CAT preparation, अरुण शर्मा. वो मुझे बहुत ही यूजफुल लगी from the maths point of view. इंग्लिश के लिए आप न्यूज़पेपर्स पढ़िए. लाइक आई थिंक हर कोई यही कहेगा न्यूज़पेपर पढ़िए, बुक्स पढ़िए, बट दैट इज इम्पोर्टेंट नॉट जस्ट फॉर योर इंग्लिश बट ऑल्सो फॉर योर इंटरव्यू स्टेज. क्योंकि आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे, उसके बाद आपको इंटरव्यू पैनल में बैठना ही बैठना है. सो यू विल बी मोर अवेयर. सो डू दैट. बी वेरी वेरी सिंसियर विथ योर ओन प्रेपरेशन. get 1 or 2 books, read the newspapers, take online tests. All of this will prepare you very well. उसके अलावा पर्सनली जो मुझे लगता है कि अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस हो प्रायर टू टेकिंग एन एमबीए एग्जाम, तो आपको क्लासरूम में जो पढ़ाया जाएगा एमबीए में, वो आप इट विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस टू यू. क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि वर्कफोर्स में क्या होता है, किस तरह के डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो शायद आप उन केस स्टडीज से नहीं रिलेट करेंगे जो क्लास में बताई जाती हैं. यू विल टेक देम एज गिवन कि अच्छा ऐसा होता है तो ऐसा किया जाता है, अगर ये ऑप्शंस होते हैं तो इससे हम इवेलुएट करके ये ऑप्शन लेते हैं. यू विल नॉट बी ड्रॉइंग अपॉन एनी एक्सपीरियंस. सो पर्सनली आई फील अगर आपको मौका मिले या आप ये कर सकते हैं तो 1 या 2 साल का आप वर्क एक्सपीरियंस लीजिए बिफोर गोइंग फॉर एन एमबीए. One, it will add to your understanding in the classroom in an MBA environment, and 2, it also carries weightage for your profile. जब आप अप्लाई करते हैं कॉलेजेस के लिए, your work experience counts. So that is from a preparation, like outside non-academic preparation. And one thing which I cannot stress enough, co-curricular activities are very important. Again coming back to आप जॉब के साथ आपको कोई इंटरेस्ट है, आप उसे परस्यू करिए. क्योंकि आज की डेट में अगर कोई भी कॉलेज, ना सिर्फ हिंदुस्तान में मगर बाहर भी, आपकी प्रोफाइल देख रहा है तो आपके साथ 10 और प्रोफाइल्स देख रहा है जो पढ़ाई में उतने ही अच्छे हैं और उतने ही अच्छे कॉलेजेस में पढ़े हैं. सो व्हाट इज इट दैट यू आर ब्रिंगिंग टू द टेबल? तो आप क्या डीप सी डाइविंग करते हैं, आप अच्छी फोटोग्राफी करते हैं जिसका आपने एक इंस्टाग्राम पेज बनाया है जिसपे बहुत फॉलोअर्स हैं, क्या आप एनजीओज में वॉलंटियर करते हैं जहां पे आपने कोई मीनिंगफुल चेंज कराया है, क्या आप टीच फॉर इंडिया में इन्वॉल्व रहे हैं. सो यू नो, ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटरेस्ट को-करिकुलर्स पे जरूर ध्यान दें, बिकॉज आफ्टर द टॉप ऑफ योर रेज्यूमे विच इज योर परसेंटेज, any college or later any recruiter will skip right to the bottom which says co-curriculars. They are not interested in what is happening in the middle. नहीं, ये बहुत मतलब कि इस इम्पॉर्टेंट बात है कि जॉब एक्सपीरियंस के बाद अगर आप एमबीए करें तो आपका जॉब प्रॉस्पेक्ट जो है और ज़्यादा बढ़ जाता है.
ये बिल्कुल मतलब कि एक्सपीरियंस की बातें हैं। तो जो भी सुन रहे हैं इसको जरूर गौर कीजिएगा कि अगर आप 1-2 साल अगर काम कर सकते हैं उसके बाद MBA ऑफर्ड कर सकते हैं तो वो ज्यादा मतलब कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा करियर प्रॉस्पेक्ट्स में। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा वक्त हो गया, हमने काफी वक्त आपका लिया। तो जाते जाते जो हमारा मतलब कि एक तरीका है, आम है कि इस सेशन पे माइंड स्पार्कल पे लास्ट क्वेश्चंस जो हम पूछते हैं कि भाई आप पार्टिंग मैसेज क्या देना चाहते हैं ऑडियंस को, बहुत क्रिस्प एक मैसेज आप हिबा मतलब कि आप क्या ऑडियंस को देना चाहेंगे सक्सेस के लिए, और जो आज रिस्क टेकिंग है ओवरऑल एक 2-4 बातों से मतलब कि आप क्या बताना चाहते हैं कि ये होनी चाहिए पार्टिंग मैसेज? देखिए, मेरा पार्टिंग मैसेज यही होगा कि आप लाइफ में कॉन्स्टेंटली अपने सिचुएशन को एनालाइज करते रहिए और चेंज से मत डरिए. डोंट गेट स्टक इन अ रट. Be receptive to change, be adaptable, and take calculated risks to make those adaptability to adapt and to make those changes. एक दूसरी चीज which I think I missed out grossly throughout this conversation is the importance of a mentor, and maybe Shanawaz Saab could touch upon it in the later sessions as well. अगर आप एक mentor आपके पास है, आप किसी से कनेक्ट कर सकते हैं एज अ मेंटर, that will be very very valuable, very useful when you set out on your path to take decisions, when you want a sounding board कि मैं किसी से बात कर लूं जो मुझे बता सके, मुझे गाइड कर सके. सो लुक अराउंड यू, आपके स्कूल में, कॉलेज में, जॉब में, नेबरहुड में, हो सकता है फैमिली में कोई ऐसा होगा जिससे आप रिलेट कर सकें, who can be your mentor in helping you make these calculated risks through life and on your way to success. Yeah, मतलब कि mentoring is very very important. In fact, this is the final message. Wherever you are, if you can find a mentor who can guide you, who can make you see the real situation, and who can prepare you also theoretically, practically for that emerging situation, then that mentors will count a lot in your future career process. Very well explained, Ms. Hiba. In fact, we are very lucky to have you on this session, and it has been a very fruitful discussion with you on all the aspects of risk-taking abilities, management, career, real estate, and so many entrepreneurship also, and so many other aspects, the whole dimension of a thing which a student or audience who is on the verge of starting a career or in the career trying to make a bigger new career. These are all add to their perspective and how to take decisions in life. So it has been a wonderful session. I'm really happy and I'm really thankful to you for joining this Mind Sparkle series. And I would like to thank you from all my respect to you for giving your valuable time to the audience. And in fact, to Javed Akhtar also and to Dr. Wasim for being the panelist and being so patient with the entire proceedings. In fact, I would like to thank all the audience for giving such a nice reception to all the talks which we are having. And Ms. Hiba, again, second round of appreciation to you for your beautiful exposition of this theme, risk-taking abilities and how to change your career or make your career. So I wish you all the luck for your endeavor also. And I thank you once again for being with us, Ms. Hiba. Thank you very much. Thank you so much. Thank you, Mr. Shanawaz. This has been a brilliant experience. Thanks a lot. A lot of credit goes to you. Thank you. And we end up this session with best of luck to everybody, including the panelists and the audience. Thank you. We'll meet again. Thank you.